یہ اسلام کا کتنا حسین نظام ہے کہ ماہ رمضان شریف رخصت ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ یہ عید کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، عید کے علاوہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، اس لیے کہ خوشیوں کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، کیف ہے، سرور ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عید کا نام عطا کیا، خوشیوں کے دن کو عید کا نام عطا کیا۔ اور عید کیا ہے؟ عید کہتے ہیں عید عود کرنے کو، یعنی پلٹنے کو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بخار عود کر آیا، یہ چیز پلٹ کر آ گئی، تو جو چیز بار بار پلٹ کر آتی ہے، عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے امت کو گارنٹی دی ہے کہ غم پلٹ کر آئے نہ آئے، لیکن اے میری امت، تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی، تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی۔ اسلام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کا نام یہ ہو کہ غم پلٹ کر آئے گا، لیکن اسلام میں عید ہے، خوشیاں پلٹ کر آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد صرف اللہ اکبر، عید الفطر کو عید نہیں کہا، بقرعید کو بھی عید کہا۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی امتی سوچ سکتا ہے کہ چلو سال میں 2 مرتبہ خوشیاں پلٹ کر آئے گی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، یعنی کہ صرف سال میں 2 خوشیاں پلٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ ہر ہفتہ پلٹ کر آئے گی، ہر لمحہ پلٹ کر آئے گی، ہر ساتھ پلٹ کر آئے گی۔ اس لیے اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ عید کے دن غصے میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن جلال میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن غضب میں آنے کا دن نہیں، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس دن خوشیاں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے اے پاپیو، آج تمہارے پاپ نہیں دیکھوں گا، عید کا دن دیا ہے تو اس کے صدقے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ عید کے دن جب عید کی نماز پڑھ کر مسلمان اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اس شان سے عیدی عطا کرتا ہے کہ فرشتوں جا کر اعلان کر دو کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جو مانگیں گے عطا کروں گا، جو مانگیں گے دوں گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے روزے قبول کیے، تمہاری نمازیں قبول کی، تمہاری تراویح قبول کی، تمہاری تسبیح قبول کی۔ بس بات اتنی ہے کہ بندہ اللہ سے امید کرے۔ مجھے ایک بات بہت پسند آتی ہے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک پیغمبر، دیکھو عمل کتنا ہی مختصر ہو، کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا ہو، مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر۔ ہاں، عمل کے معاملے میں ہم کمزور کبھی ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا، یہ خاص بات یاد رکھیں۔ یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا۔ عمل میں کمزور ہونے والا جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، لیکن یقین میں کمزور ہونے والا بخشا نہیں جاتا، اس لیے یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ ایک نبی کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اب اس دور کے نبی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کیا تھا لیکن جواب نہیں آیا۔ کیا کہا تھا؟ کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کی، اس سے کہو کہ یہ بڑی باتیں کرنے لگا ہے میرے دربار میں نے اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے کاٹ کر اس کا نام مردودوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نکال کر ناپسند بندوں کی، پسندیدہ بند، توجہ میری طرف کریں، خاص جملہ ہے، پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نام نکال کر ناپسند بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ وجد کرنے لگا، اس پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ وجد کرنے لگا۔ اس دور کے نبی نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے کہا کہ تیرا نام مردود بندوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے اور تو وجد کرتا ہے۔ تو اس دور کے نبی کو اس بندے نے کہا آپ نے دیکھا نہیں فہرست کس کی ہے؟ مجھے کیا پڑی کہ محبوب ہو کہ مردود ہو، ہے تو اس کے بندوں کی فہرست میں۔ ارے اس کی فہرست میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ اس کے بندوں کی فہرست میں آ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے ضرور رہو، لیکن ٹینشن اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے قبول ہوں گے کہ رد ہوں گے۔ ارے جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا، مگر یقین تو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس نے روزدار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزدار بندوں کی فہرست، لیکن ڈرتے بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے آج عید کی خوشیاں عطا کی ہے، یہ عید کا دن ہے، لیکن اس مبارک دن میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں، غریبوں کو
मिस्कीनों को, जैसा कि अभी सूफ़ी साहब ने भी फरमाया, खतीब मिल्लत ने भी फरमाया, हमारे बिरादर ने भी फरमाया कि गरीबों यतीमों का ख्याल करो। जिस खुशी में गरीब शरीक ना हो वो खुशी क़यामत के दिन अजाब बन जाएगी। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, सबसे बुरी दावत वलीमे की वो है जिसमें गरीबों को मदऊ नहीं किया जाता। गरीबों को, यतीमों को जमा करें, उनको खुशियाँ अता करें, रिश्तेदारों को। जब अल्लाह नवाज रहा है तो हमें भी आज के दिन हाथ बड़ा करना चाहिए, नवाजना चाहिए, खर्च करना चाहिए। एक हदीस पाक है, और अगर हमारे पास कोई उम्मीद लेकर आए और हम उसकी उम्मीद को पूरा कर सकते हैं तो हमें उसकी उम्मीद को पूरा करना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो किसी की आस तोड़ता है खुदा उसकी आस तोड़ देता है और उसके अमाल को अल्लाह रद्द कर देता है। ईद मनाने वालों, ईद सिर्फ सफेद नए कपड़ों का नाम नहीं है, ईद सिर्फ इतर और खुशबू लगाने का नाम नहीं है, ईद सिर्फ आंखों में सुरमा डालने का नाम नहीं है। ईद, अल्लाह अकबर, बदन पे ईद के दिन खुशबू लगाओगे, थोड़ी देर का पसीना उसको बदबूदार कर देगा, लेकिन अल्लाह के बंदों की आस पूरी करके उनके दिल को खुश करोगे। माँ की आस पूरी करके, बाप की आस पूरी करके, भाइयों की आस पूरी करके, पड़ोसियों की आस पूरी करके, मुसलमानों की आस पूरी करके अगर आपने उनके दिलों को खुश कर दिया तो इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे तब भी खुश रहोगे, कब्र के अंदर भी खुश रहोगे, मैदान महशर में भी खुश रहोगे। लेकिन अफसोस आज हम लिबास पर तो तवज्जो देते हैं, रिश्तों पर तवज्जो नहीं देते, लोगों के दिलों पे तवज्जो नहीं देते। इसलिए ईद इस तरह भी मनाइए, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कीजिए और लोगों की जरूरतों का ख्याल कीजिए, अपनी खुशियों में लोगों को शरीक कीजिए। और साथ ही साथ हालात बहुत तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। नमाज इंशाअल्लाह वक्त पे खड़ी करना है, बहुत लंबा खिताब नहीं करना है। हालात पूरी दुनिया में तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान चेहरे उतरे हुए, मायूसी चेहरों पर, परेशानियों की लकीरें कि अब क्या होगा। हालात हमारी हिमायत में नहीं बल्कि धीरे धीरे मुस्लिम मुखालिफत में बनते जा रहे हैं। कहीं पर मुसलमानों की लाशें हैं, कहीं पर मुसलमानों की लुटती हुई आबरू हैं, कहीं पर मुसलमानों के जलते हुए मकानात हैं, कहीं पर मुसलमानों पे बरसते हुए डंडे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे हालात में मायूस नहीं होना, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अपना साथ कोई दे न दे, हमारे साथ अल्लाह है। जब हालात मायूस कुन होते हैं तो उस वक्त किसी से टकराव भी मत लो, किसी से टकराने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ा लेने की जरूरत नहीं, किसी की मुखालफत की जरूरत नहीं। हालात जब मायूस कुन हो तो सीरत मुस्तफ़ा क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखो मक्के के हालात इतने खराब हो गए, मक्के के हालात मुसलमानों के हवाले से इतने बदल गए कि रिश्तेदार जो थे वो दुश्मन बन गए, बल्कि चचा दुश्मन बन गया। जब हालात बदलते हैं तो मुसलमान का अंदाज क्या होता है। और एक बात याद रखना मुसलमानों, इसको दिल पे लिख लो कि जब मुसलमानों का सब साथ छोड़ देते हैं तब अल्लाह की मदद आती है, तब अल्लाह की मदद आती है। और जब अल्लाह की मदद आती है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती, बस शर्त यह है कि तुम अल्लाह के करीब आओ। क्या ज़िना के अड्डों को आबाद करने की प्लान बनाते हैं मुसलमान? क्या मुसलमान जुओं के अड्डों पे जाते हैं? क्या मुसलमान शराब के अड्डों पे जाते हैं? क्या मुसलमान अय्याशों के अड्डों पे जाते हैं? छोड़ो सारे गुनाहों को और अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। मक्के के हालात बदल गए। अबू लहब चचा है, अबू जहल हजरत फारूक आजम का मामू है, रिश्तेदारियां हैं, लेकिन पूरा मक्का मुसलमानों के मुखालिफ हो गया है। जब मुसलमानों के मुखालिफ हुआ, हालात इतने बदले कि अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का छोड़ने पर बज़ाहिर जो है वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया मक्का छोड़ने हुजूर। लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद अपने अंदर पैदा करो, उम्मीद की किरण पैदा करो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अपने पास है। अल्लाह की ताकत अपने पास है, ईमान की ताकत अपने पास है, कुरान की ताकत अपने पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अपने पास है। बस रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ने, किस शान से छोड़ रहे मक्का? सिर्फ एक सहाबी दुबले पतले, हुजूर के जो सहाबी हुजूर के साथ थे दुबले पतले। इंसान जब मजबूर होकर परेशान होकर कहीं से निकलता है तो मजबूत साथियों के साथ निकलता है, ठीक है, मजबूत बॉडीगार्ड के साथ निकलता है कि हमले के मौके पर मेरी मदद ये बंदा करेगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसको साथ लिया उसका वजन वो बज़ाहिर दुबला पतला है, कमजोर शख्सियत है, जिस्म के एतबार से कमजोर है मगर ईमान के एतबार से इतनी मजबूत जात है कि हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में रखो और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा, यकीन उसका भारी पड़ जाएगा। हुजूर ने सबसे दुबले पतले सहाबी को साथ लिया। लेकिन जब काबे का आखिरी मर्तबा तवाफ किया तो काबे का तवाफ करके हुजूर ने काबे को देखा और रो पड़े और कहने लगे, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे कभी छोड़कर ना जाता, तू मेरे अल्लाह का घर है, मगर ए काबा सुन ले, मैं आज जा रहा हूं,
मैं आज जा रहा हूं लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। यकीन बोल रहा है जल्द वापस आऊंगा। देखो हालात ऐसे, हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं मगर हुजूर फरमा रहे उम्मतियों को दर्श देने के लिए हालात से कभी मायूस नहीं होना। हुजूर कहते हैं मैं जल्द लौट करके आऊंगा। और फिर सिद्दीक अकबर को साथ लेकर हुजूर गारे सौर में 3 दिन तक रुकते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोग, एक सिद्दीक अकबर है, सरकार है। वाकया बताना मकसद नहीं, सिर्फ इशारा देना ताकि उम्मीद की किरण पैदा हो। कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, हालात से हालात बदलते रहे। हुक्मरां कभी नेक आते हैं, कभी बद आते हैं, कभी रहमदिल आते हैं, कभी सख्त दिल आते हैं, लेकिन अल्लाह तो हमारा वही है, हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह नहीं बदलता, अल्लाह तो वही है ना, अल्लाह वही है। तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। छोड़ दो गुनाहों को, छोड़ दो अय्याशियों को, छोड़ दो बुराइयों को, हराम छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, चुगलियां छोड़ दो, हक तलफियां छोड़ दो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम गार में हैं, सिद्दीक अकबर ने देखा कि दुश्मन आ गए हैं और आए हैं, उनके पैर सिद्दीक अकबर को नजर आ गए। सिद्दीक अकबर बेचैन हो गए और अब सिद्दीक अकबर ने गोया बज़ाहिर उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, इसलिए कि दुश्मन जब गार के दहाने पर आ गए हैं पकड़ ही लेंगे। अपनी फिक्र नहीं थी, महबूब की फिक्र थी। मेरा महबूब शहीद हो गया तो बात ही खत्म है, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब शम्मे महफिल गुल कर दी जाएगी तो शमा कैसे रहेगी? शम्मे महफिल बुझा दी जाएगी तो जीनत महफिल कहां चली जाएगी? जाहिर सी बात है, महफिल से पीरे मोगा उठकर चला जाए तो महफिल की रौनक चली जाती है। अगर रसूलुल्लाह चले जाएंगे तो फिर कायनात का हुस्न कहां होगा, कायनात की बहारें कहां होगी? इसीलिए कुदरत ने फैसला किया है, हबीब जब तक तुझे रखूंगा तभी तक कायनात को रखूंगा, जब तुझे उठा लूंगा तो कायनात को भी उठा लूंगा। पता चला आज कायनात मौजूद है, मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। नजर आए या ना आए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अल्लाह अकबर, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर खुशियों की बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर ईदें पलट पलट कर आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर गुलिस्तान में बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। रमजान शरीफ पलट पलट कर आ रहा है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है, हुजूर मौजूद है। ये और बात है, नजर आए या ना आए। सिद्दीक अकबर को गम हुआ, गम करने लगे मेरे महबूब का क्या होगा? हम तो सदके चले जाएंगे, हम तो कुर्बान हो जाएंगे, महबूब का क्या होगा? हुजूर ने क्या फरमाया? ला तहज़न, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। मक्के के डाकू, मक्के के गुंडे, मक्के के दहशतगर्द हमें निकलने पर मजबूर करते बज़ाहिर, मगर गम न कर, ताकत हमारे साथ नहीं, असलहे हमारे साथ नहीं, वक्त की मक्के की हुकूमत हमारे साथ नहीं, लेकिन इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और दुनिया ने देखा जब नबी निकले थे तो अकेले एक सिद्दीक के साथ निकले थे, मगर जब लौटते मक्का फतेह करने तो हजारों सहाबा को लेकर के लौटते और सारी ताकतें कदमों में ठेर हो जाती है। हमें कोई मायूस नहीं होना, लेकिन करना क्या है? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। दाढ़ियां मुंडा के गट्टों में फेंकोगे तो कब अल्लाह साथ होगा? कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनोगे तो अल्लाह कब साथ होगा? अल्लाह साथ कब होगा? उसकी तरफ आओ तो सही। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे। कितनी बड़ी बात कही, और सीधी अबू बकर सिद्दीक से नहीं कही, सिद्दीक अव्वल मुखातिब थे इस बात की, और क़यामत तक का हर मोमिन था। ला तहज़न, गम न करो, कैसे ही हालात आए गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं मायूस होने की, डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जज्बाती होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे और कौमें सियासत के मैदान में खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहें। तिजारत की मैदान में खड़ी है, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। एजुकेशन के मैदान में और कौमें खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। मायूस ना हो, जितना टैलेंट आपके पास है, बस बात खत्म कर रहा हूं, जितना टैलेंट आपके पास है, सलाहियत, उतना किसी के पास नहीं है। सबको आपके टैलेंट से खौफ है, इसलिए कि आपके पास सलाहियत बहुत है। अल्लाह ने आपको जहन बहुत दिया है, आपको दिमाग बहुत दिया है। कायनात के अंदर जितनी चीजें इजाद करने की, जितने निकात निकले हैं, वो कहीं ना कहीं से उसके सोते इस्लाम से फूटते नजर आते हैं। लेकिन बात इतनी है, लोग आपकी सलाहियतों को जंगालूद करना चाहते हैं। जब आप मायूस होंगे तो पढ़ेंगे कहां? जब आप मायूस होंगे तो तिजारत कहां करेंगे? कोई मायूस नहीं होना, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके घर से निकलो, और मौत से तो डरना छोड़ दो, इसलिए कि ईमान बना लो। अगर ये ईमान नहीं है तो अपने ईमान का जायजा लो कि फिर तुम क्या हो,
फिर तुम क्या हो? मोमिन की शान ये, मोमिन का ईमान है कि जिस दिन अल्लाह ने आपकी मौत लिख दी है, उससे एक सेकंड पहले मौत नहीं आ सकती और उसके एक सेकंड बाद मौत नहीं आ सकती। अगर उसने लिखी है कोई बचा नहीं सकता। एसी में पैक कमरों में भी महफूज नहीं रह सकते। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां पर आकर के रहेगी। अल्लाह ने लिख दिया है मजबूत किला भी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता, और अल्लाह ने नहीं लिखा है तलवार से टुकड़े कर दिए जाएं फिर भी तुम्हारी जिंदगी मौजूद रहेगी। ये एक मुसलमान का ईमान। छोड़ दो मौत से डरना, मौत से डरना। और दुश्मन क्यों टूट पड़े तुम पे पता है? सरकार की हदीस है, जब मेरी उम्मत में दो चीजें पैदा हो जाएगी तो उन पर लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। पूछा क्या वजह होगी? हम कम होंगे? कहा नहीं, हुब्बुद दुनिया व कराइयतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत मेरी उम्मत में पैदा होगी और मौत से नफरत पैदा होगी। जब ये चीज पैदा होगी तो वो बुज़दिल होंगे और इस्लाम दुश्मन ताकतें उन पर टूट पड़ेगी। दुनिया के सामने सीना तान कर लड़ने के लिए नहीं, सलाहियतों को लेकर खड़े रहिए। सियासत, तिजारत और तालीम, इन तीनों बल्कि हर मैदान में सबके कंधे से कंधा मिलाइए। जो सलाहियत आपके पास है वो किसी के पास नहीं। लेकिन इख्तिताम इस पे करता हूं, आपकी सलाहियतों को जंग लग रहा है क्योंकि आपके बच्चे अब किताब को छोड़कर मोबाइल हाथ में ले चुके हैं। रोजे में भी गेम नहीं छूटता लोगों से, गेम रोजे में भी। वो रोजे क्या कबूल होंगे जिस रोजे में खुदा की याद नहीं आती, गेम ही में डूबे रहते हैं। और कुछ गेम्स ऐसे यहूदियों ने इजाद किए हैं जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर, नफ्सियाती तौर पर तुम्हें शिकस्त देने का प्लान है। जो तुम्हारे बच्चे गेम खेलते हैं वो नफ्सियाती तौर पे खुद को शिकस्त खुर्दा यानी हारा हुआ तस्लीम करते हैं। अभी रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की बात है कि पबजी खेलते हुए एक फुरकान नाम का लड़का मर गया। 12वीं जमात का सबसे बेहतरीन तालिब इल्म मर गया। हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं? क्यों देते हैं अपने बच्चों को गेम खेलने की हम इजाज़त? आप अपने बच्चों को वो गेम्स खेलने की इजाजत दीजिए जिससे जिस्म की नशोनुमा होती है, जिस्म जिससे मजबूत होता हो। ये गेम तो आपके बच्चों को निस्वानियत की तरफ ले जा रहे हैं। वो आपके बच्चों को ज़हनी तौर पर माऊफ कर देते हैं, ज़हनी तौर पर थका देते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपनी सलाहियतों का ख्याल कीजिए, अपने टैलेंट का ख्याल कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए और मायूस हुए बगैर तिजारत के मैदान में डटिए। आजकल तिजारत भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा ठप होती जा रही। वजह यह है कि तिजारत करने वाले ही गेम खेलते। मेरे अजीज़ ने, मेरे भाई ने मुझे एक बात कल ही बताई। एक मेडिकल का तस्करा किया कि बहुत चलता था मेडिकल, भीड़ लगी रहती थी। एक उस इलाके में मेडिकल था नहीं, लेकिन 4-6 लड़के आने लगे और सब बैठ करके गेम खेलते हैं। तो वो गेम देखते देखते खेलते खेलते फिर वो कभी चिट्ठी देखते, कभी नहीं देखते, कभी छोड़ देता है। लोगों ने आना छोड़ दिया, माल है नहीं है। इस तरह से ये तालीम में भी तालीम को भी मुतासिर कर रहे हैं गेम, तिजारत को भी मुतासिर कर रहे हैं, फिक्र जहन को भी मुतासिर कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है तिजारत के मैदान में मजबूत होइए, मंदी वंदी का कोई ख्याल मत कीजिए। इसलिए कि तिजारत सियासतदानों की चौखट से नहीं मिलती, बल्कि रिस्क अल्लाह के दरबार से मिलता है। उसके यहाँ कोई मंदी नहीं है। अगर तुम अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो, सबकी दुकान पे मक्खियां भिनभिनाएगी, तुम्हारे दुकान पर ग्राहकों की कतार लगी हुई होगी। ये बात है। मैं आपको कोई लतीफ़ा नहीं कह रहा हूँ, कोई चुटकुला नहीं कह रहा हूँ, कोई सब्ज़ो बाग भी नहीं दिखा रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, इतने बड़े मजमे में आज ईद का दिन है कि अल्लाह से रिश्ता जोड़िए। जिन लोगों ने रिश्ते अल्लाह से जोड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनको जंगलों में रोज़ियाँ अता की है। बस रिश्ता जोड़ कर तो देखिए। बात खत्म करते हुए, इसलिए कि लोग आ रहे हैं, अब जो लोग आ रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बस 5 मिनट में जमात खड़ी हो जाएगी, वो वुजू कर ले जल्दी से। और जो लोग उधर बैठे उनसे राब्ता जोड़ने के लिए, अब चूंकि जगह भी खत्म है, करीबुल खत्म है, अगर यहां पर कोई मोटा टांट वगैरह डालकर इसको भी पैक कर सकते हो तो चंद लोग यहां आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। दरगाह शरीफ का सहन भी भर चुका है, उधर लोग खड़े हैं, तो वो जो पैसेज है ना, ये रास्ता जो है उसमें भी सफ़ लगा लें ताकि उधर वालों से आपका कनेक्शन जुड़ जाए और उनकी सफ़ें मुत्तसिल हो जाए। बात इख्तिताम को ले जा रहा हूं, आखिरी बात। अल्लाह से रिश्ता अगर जुड़ जाए, अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए, हर दुश्मन दोस्त बने। रोज़ी का टेंशन नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है, वमा मिन दाब्बतिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह ने अपने करम से अपने ज़िम्मे पे ले लिया सबकी रोज़ी। रोज़ी का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ कोशिश करनी है, मेहनत करनी, काविश करनी है, बस कोई टेंशन नहीं लेना। रिश्ता अल्लाह से जोड़ो। गुनाह और पाप इंसान की रोज़ी को भी तबाह करते हैं, ज़िंदगी को भी कमज़ोर कर देते हैं, ज़िंदगी के अंदर भी कटौती। हुज़ूर की हदीस है, सरकार फरमाते हैं ज़िना करने से इज़्ज़त जाती है, चेहरे का नूर जाता है, ज़िंदगी कम कर दी जाती है, ज़िंदगी घटा दी जाती है और रोज़ी भी कम कर दी जाती है, उम्र घटा दी जाती है। गुनाहों से ये सब होता है। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग है, इसको दाता साहब ने लिखा है, दाता अली अजवरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने वो बकरियाँ चलाते थे। हज़रत अबू मुस्लिम राई उनका नाम था,
حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا، دشمن دوست کیسے بنتے ہیں اور دوست و دشمن کیسے؟ جب زیادہ دشمنی پھیلنے لگے تو توبہ کر لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر دوست بڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ میں یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کچھ بدبخت رہتے ہی دنیا میں ایسے جو نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ 2.5% ہے، جیسے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے نا روپیوں سے ناپاک شکل میں، تو ویسے انسانوں سے وہ 2.5% نکال دیے جاتے ہیں نفرت کے لیے، ان کی پرواہ نہیں کریں۔ میں 97% طبقے کی بات کر رہا ہوں، میں 2.5% کی بات نہیں، وہ نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے، ان کا بیج ہی نفرتوں میں بویا جاتا ہے، ان کی بات نہیں، عالم کی بات کر رہا ہوں۔ عالم بہت بڑا ہے، عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، یہ سب مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن کیسے بڑھتے ہیں اور دوست کیسے ہوتے ہیں۔ تو شیخ ابو مسلم رائی کہتے ہیں چرواہے کو، شیخ ابو مسلم رائی بکریاں چرا رہے تھے، اور اس شان سے چرا رہے تھے۔ دیکھو چرانے کا انداز کیا، ہم کام کرتے کرتے گیم کھیلتے ہیں نا، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کا میں مخالف نہیں ہوں، شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہے مخالف ہوں، میں خود استعمال کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت اچھی ہے۔ کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کو بھی مت زیادہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو۔ تو جب کھانے پینے میں پابندی لگا دی گئی کہ حد سے مت بڑھو، تو واٹس ایپ اتنا کیسے آپ نے نشے کے طور پہ طاری کر لیا کہ نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ بیوی نہ بچے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو؟ یہ مت کرو۔ ہمارے ہر چیز ایک اعتدال پر ہے، جب کھانا پینا اعتدال پر ہے، ولا تسرف کہہ کر کیسی پابندی لگائی، حد سے مت بڑھو۔ حد سے جہاں بڑھو گے پکڑے قدرت پکڑ لے گی، سزا دے گی۔ حد سے مت بڑھو، خوشیوں میں بھی حد سے مت بڑھو، غموں میں بھی حد سے مت بڑھو۔ خوشیوں میں عید میں اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ تھیٹریں بھر جائے، میت پہ اتنے مت غمگین ہو جاؤ کہ ماتم ہی کرنے لگو۔ ہمارا مذہب وہ نہیں، اعتدال اعتدال اور اعتدال۔ بہرحال حضرت شیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہے چراگاہ میں، درخت کے نیچے مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرا دینے کے لیے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں جب بھیڑیے جس کی بکریوں پہ پہرا دے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بھیڑیے ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ چرواہا بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بھیڑیے سے بچانے بکریوں کو، لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہیں اور بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں۔ اور حیرت ہے، بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں، لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں اور بھیڑیے پیرا دیتے ہوئے بیٹھے۔ وہ مرید دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ گیا، اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے نا، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا، اس کے قدموں کی آٹ آئی تو نماز شارٹ ہو گئی، چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی بات۔ سلام پھرا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بکریاں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ کیا پیارا جواب دیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی، میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی۔ جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی، بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی۔ اچھا، اوہو۔ پھر اس کے بعد دوپہر تھی، کھانے کا وقت آیا، تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو، گئے، ایک چٹان تھی پتھر کی، اس کو ہاتھ مارا، ایسی ہاتھ مارا تو 2 کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا، ایک طرف شہد نکلا۔ یہ بہت معتمد اور مستند کتاب صوفیہ کے نزدیک جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں، میں وہیں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ کوئی بہت یعنی جو وہ غیر معتبر بات نہیں ہے، بہت معتبر واقعہ۔ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ یہ داتا صاحب کون ہے؟ داتا لیجوری غوث پاک کہتے تھے میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا۔ یہ ہے داتا صاحب، وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ۔ اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ تو اب آپ نے جواب کیا دیا، نادان تجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت، ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا۔ موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے۔ میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں۔ ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھے، کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بن کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے، کیسی روزی چلتی ہے، اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔